Good evening, my dear student. Last time we had a discussion about democracy. What is democracy and why democracy? We were discussing. Today we will discuss about the features of democracy. What are the features? If we want more about democracy, we have to discuss more about like the features. What are the merit? What are the demerits? Argument against democracy. So we will start. What are the features of democracy? The first feature of a democratic government or democracy is major decisions by elected leader. The first one feature. What is the meaning of major decisions by elected leaders? कि लोकतांत्रिक सरकार जो चुनी गई होती है उसके द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए. The final saying is must rest in those people who are elected by the people. इसका क्या मतलब है? क्या इससे मतलब समझना है कि हमने तो सरकार चुन लिया. The democratic government is a government elected by the people. Why there is that the major decision is elected by major decision by elected leaders कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय लेना चाहिए. ये कहने का क्या तात्पर्य है? तो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा पाकिस्तान का एग्जाम्पल. We had example of Pakistan when General Pervez Musharraf came in power by a military coup. सैन्य तख्ता पलट करके परवेज मुशर्रफ ने जैसे वहां की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को अपने हैंड में ले लिया. यद्यपि वहां इलेक्शन हुए, वहां रिप्रेजेंटेटिव लोगों द्वारा चुने गए, लेकिन फाइनल डिसीजन किसके द्वारा वहां होता था? सबसे हेड पे टॉप पे कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ. A military dictator. Is such a government a democratic government? क्या ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं? कदापि नहीं. लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जो जनता द्वारा चुनी गई हो और वही वास्तव में कार्य करे. जो फाइनल सेइंग है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, वो उसी के हाथ में होना चाहिए. ये ना कि हमने प्रतिनिधि चुन दिया और प्रतिनिधि के ऊपर कोई और आके बैठ गया, वो शासन संभालने लगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मेजर डिसीजन is by elected leader. It means the final saying or the decision making power must rest in the elected leaders. If the functioning of the government is by the elected leaders, then we can say it is a democratic government. If we had elected leaders and they are not functioning, the decision making power is not in their hand. If the decision is taken by some other persons, then we cannot say it is a democratic government. Second feature, free and fair electoral competition. In democracy, we think about that it is a government elected by the people. यह लोगों द्वारा चुनी गई. तो इलेक्शन कैसा हो? लोगों द्वारा चुनी गई हो. क्या हम ऐसी सरकार को जो लोगों पे दबाव डाल के, उनको प्रेशराइज करके, उनको थ्रेट करके, उनको लोग लालच देकर के चुन लें, क्या उसको लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? कदापि नहीं. A democratic government must be elected through a free and fair electoral competition. Free and fair electoral competition. It means the election must be free of any type of threat or bribe. किसी भी तरीके के भय, डर या लोभ लालच से वो दूर हो. उसमें किसी भी तरीके का डर ना हो, भय ना हो, वो फ्री होना चाहिए और फेयर, फ्री एंड फेयर, उचित होना चाहिए. It means every voter must get his right to vote or he can cast his vote in a free and fair manner, as well as the leader, the contestant must have a fair chance to contest in election. Free and fair electoral competition का मतलब यही है कि चुनाव ऐसा हो, निर्वाचन ऐसा हो कि जिसमें हर एक मतदाता बिना किसी डर भय के आसानी से वोट दे सके. साथ ही साथ जो कंटेस्टेंट हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो बिना किसी डर भय के वो भी चुनाव लड़ सके. द नेक्स्ट फीचर इज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. इसको चरितार्थ करता है फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन को. ये चरितार्थ करता है क्या? वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. व्हाट इज इट्स मीन? वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. एक व्यक्ति, एक वोट और एक
महत्व, उसका एक मूल्य। इट गेव ए कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स right to vote to all, right to vote to all. Those who are measured, who have attained the age of majority, they can cast their vote without any type of discrimination. The discrimination based on caste, creed, sex, color, किसी भी जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव रहित लोगों को वोट देने का अधिकार हो। और वो क्या कर रहा है कि 1%, हर एक व्यक्ति को एक वोट हो और उसका एक मूल्य हो। ये कहने का क्या तात्पर्य है? इफ यू सी द केस ऑफ फ्रांस, जब फ्रांस का इतिहास हम देखेंगे तो क्या पता चलता है कि द सोसाइटी इन फ्रांस वाज डिवाइडेड इन 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। एंड दो द नंबर इज डिफरेंट इन दीज 3 स्टेट, येट द 3 स्टेट हैव इक्वल वोट। कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी 3 स्टेट में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में, क्लर्जी, नोबेल्टी एंड कॉमन पीपल, 3 स्टेट में बटी हुई थी और तीनों को एक एक वोट मिला। यद्यपि संख्या थर्ड स्टेट में सबसे अधिक थी, कॉमन लोगों की, फार्मर्स की, पीजेंट की, वर्कर्स की, आर्टिसंस की संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन तीनों को एक एक वोट दिया गया था 3 समूहों के लिए। ये कहीं से उचित नहीं था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जहां कम लोग थे उनको भी एक वोट, और जहां थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग थे उनको भी, उस पूरे समूह को एक वोट मिला हुआ। और जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तीनों स्टेट बैठते थे और हमेशा 2-1 की मेजॉरिटी से उसको पास कर लिया जाता था। तो 2-1 की मेजॉरिटी यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा साथ होते थे, क्लर्जी और नोबेल्टी। इस तरीके से कोई भी डिसीजन उनके फेवर में होता था और कॉमन लोगों के लिए कुछ नहीं हो पाता था। तो इसका मतलब क्या है? 1 person 1 vote and 1 value। एवरी पर्सन मस्ट हैव राइट टू वोट एंड दिस वोट मस्ट बी इक्वल। यानी कि सबको जो राइट टू वोट मिला है वो समान होना चाहिए और उसका मूल्य भी, उसका महत्व भी एक बराबर। तो तभी मूल्य एक बराबर होगा जब सबको मिला होगा मत का अधिकार और सबका बराबर महत्व। द लास्ट पॉइंट अबाउट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ, वी थिंक अबाउट द गवर्नमेंट, democratic government, that the democratic government is elected by the people, it work for the people, or it function for the welfare of the people. But mere election and mere functioning is not sufficient to make it democracy. लोकतंत्र बनाने के लिए केवल लोगों द्वारा चुन लिया जाना या लोगों के लिए कार्य करना इतना ही सफिशिएंट नहीं होता। यदि वास्तविक लोकतंत्र की हम कल्पना करते हैं, सही लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, तो वहां क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इट मीन्स देयर इज सम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देयर इज सम सुप्रीम लॉ एंड अंडर विच द गवर्नमेंट कैन रन, द कंट्री कैन रन। एक सुप्रीम लॉ, सुप्रीम सेट ऑफ लॉ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं होना चाहिए, जिसके तहत वो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार काम करे। यदि केवल चुन लेते हैं, वो सरकार मनमाने तरीके से काम करती है, लोगों के अधिकार के लिए काम नहीं करती, उन पे कोई राइडर नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि पावर का मिसयूज होगा। उसी पावर के मिसयूज को चेक करने के लिए, रोकने के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। देयर मस्ट बी रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन होगा, इसका शासन होना चाहिए, कानून का शासन। जैसा कि हमने देखा फ्रांस में या अन्य जगहों पे, अब जब हम देखते हैं, इतिहास जब देखते हैं, तो शासक क्या होते थे? कहा जाता था कि राजा का निर्णय ही नियम है, नियम राजा का निर्णय ही कानून है। राजा ने जो कुछ शब्द कहा वो कानून है और राजा मनमाने तरीके से शासन चलाता था। फ्रांस में भी ऐसी स्थिति थी। फिर देखा आपने वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको शासन करने की व्यवस्था की गई। तो जब हम शासक को कानून के तहत रखेंगे तो वो शासन नियमित तरीके से करेगा। उस द गवर्नमेंट फंक्शनिंग मस्ट बी प्रॉपर व्हेन द गवर्नमेंट इज अंडर द रूल ऑफ लॉ, व्हेन द गवर्नमेंट विल फंक्शन अंडर द लॉ एंड दिस विल वेरी बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वहां की सरकार कानून के तहत काम करे। साथ ही साथ रिस्पेक्ट फॉर राइट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। Respect for right, it means
The government must respect the people's right. It means people can enjoy their democratic rights like right to speech, right to move here and there, right to express their opinion, right to livelihood, right to reside anywhere in country. देश में कहीं भी लोग रह सकें, किसी भी पेशे को अपना सकें, सरकार के अगेंस्ट कोई कमेंट कर सकें, कुछ कह सकें, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी हो, फ्रीडम हो। तो ये जब प्रोटेक्ट होगा तब जाके मानेंगे कि ये लोकतांत्रिक सरकार है। लोगों के जब अधिकार में प्रोटेक्ट रहेंगे, यानी कि लोगों को अधिकार अवेलेबल रहेंगे, और ये लोगों के अधिकार तभी अवेलेबल रहेंगे जब रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। यदि कानून का शासन नहीं होगा तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार भी मनमाने तरीके से काम करेगी। दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। प्लीज शेयर, कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, इस मौके को एडवांटेज के रूप में लेकर के हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। कमियां स्वाभाविक सी बात है कि ह्यूमन बीइंग है। जब राजा रामचंद्र, मेरा सिंपल सा कहना हमेशा होता है कि राजा रामचंद्र जो भारत के आदर्श पुरुष हैं, जब उनके अंदर कमियां निकाली जाती हैं, कमियां हैं, तो हमारे अंदर हम लोग बहुत ही सिंपल, उनके लाखों करोड़ों हिस्से भी होंगे, हम बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक प्रयास है आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।